آج ہم اسی کلام کو جو آج تیرے لوگوں کی ضرورت ہے خداوند ریما کلام کو مانگتے ہیں. میں خداوند تیری بندی کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں جس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے تیرے لیے وقف کیا ہے. اپنے روح اس کی قدرت میں زور میں اور اپنے کلام کی گہری امید خدا باتوں میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لے. مسا سے بھر الفاظ اور ترتیب کو خداوند تیری طرف سے مانگتا ہوں. جب تک کلام کو خدا تیری بیٹی پیش کرے کمک بھیجنا مدد کرنا. آج کا کلام زندگیوں کو ایک نئی خداوند ڈائمینشن میں لے جائے. تیرے لوگ تجھ میں بڑھیں ترقی کریں جبکہ تو جلد بادلوں پر آنے والا ہے تو تیار ہو سکے. تمام زندگیوں پر گھرانوں پر ہمارے گھرانوں پر تیرا بے شمار خون لگا رہے تاکہ دشمن اور شریر اور موت کے فرشتے گزر جائیں یسوع مسیح کے نام میں آمین. اور اب وقت پہنچا کہ ہم خداوند کی آواز کو خداوند کی بندی سے سنیں. تو میں درخواست کرتی ہوں باقی سارا سے کہ وہ سٹیج پر آئیں. مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. 1 منٹ کے لیے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا پریز گاڈ. اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیں گے 1 منٹ کے لیے. اور خداوند کی حضوری میں اقرار کریں کہ خدا میں عزت کے ماحول سے نکلتا اور نکلتی ہوں. میں تیری آواز کی سنما ہوتی ہوں اور ہوتا ہوں. میں اپنے دل کو خالی کرتی ہوں تاکہ آج جب تیرے کلام کا بیج بویا جائے تو یہ میری زندگی کے اندر پھلدار ٹھہرے اور خوشی کا مسا میری زندگی میں کام کرے. خداوند تو تیرا بندہ سنتا ہے. سب اپنے اپنے لیے اقرار کریں. 1 منٹ کے لیے دعا کریں گے. آئیں اپنے لبوں کو کھولیں گے. کتنے لوگ ہیں جو کلام کو سننے آئے اور اپنے دلوں میں بٹھانے آئے ہیں؟ آپ کی آواز آنی چاہیے. بہت سارے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں. وہ کہتا ہے تو مجھے پکار تو میں جواب دوں گا اور بڑی بڑی باتیں جو بھید کی ہے تجھ پر کھولوں گا. آپ اپنی اپنی زندگی کے لیے اس کے کلام کو مانگیں. یہاں پر پریچر کے لیے دعا ہو گئی مگر ابھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے لبوں کو کھولیں. آپ کی آواز آنی چاہیے. کلام میں لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہوگا. جی گڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا پریز گاڈ پریز گاڈ. کہیں خدا آج حقیقی خوشی اور شادمانی کے روح سے مجھے بھر تاکہ میری زندگی سے ہر طرح کی افسردگی جاتی رہے ہر طرح کا غم جاتا رہے اور میری زندگی کے اندر روح کا جو دوسرا یہ پھل ہے. پہلا پھل محبت ہے. دوسرا پھل خوشی ہے. یہ میری زندگی کا حصہ ٹھہرے آج کے دن. اے مہربان خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو جو بھلا خدا ہے زندگی اور خاندانوں کے لیے بھلائیوں کے منصوبے رکھتا ہے. خدا آج جتنے تیرے لوگ تیری نظر میں تھے تو نے اپنے گھر میں ان کو فراہم کیا اور آج جب تیرے کلام کے بھید کھولے جائیں تو خدا ان زندگیوں کے اندر ان ہڈیوں کے گردوں کو چیرتے ہوئے ان کی زندگیوں کے اندر ہر لفظ تیرے روح سے بھرا ہوا ہو جو خدا ان زندگیوں کے اوپر ٹھہرتا چلا جائے. اور آج کے کلام کے بعد تیرے لوگ سن نہ رہے. یہ حقیقی خوشی اور شادمانی سے بھر جائے اور بتھیروں تک اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر جانے والے ہوں یسوع کے نام میں. آئیں یسوع مسیح کے لیے بھرپور تالی بجائیں گے. زوردار تالی بجاتے ہوئے ہاللیلویا کا نعرہ بھی ماریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تھینک یو. خدا آپ سب کو برکت دے. تشریف رکھیے گا. میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک روح کی جس نے ہم حقیر و نکموں ناوجودوں کو زمین پر چنا اور الگ کیا اور اپنے کلام کے لیے کھڑا کیا. یہ ساری عزت یہ سارا جلال ہے یسوع کے نام کو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں کہ او جی چرچ منسٹری کے فاؤنڈر چیئرمین کی
उनकी सारी एग्जीक्यूटिव की, उनकी तमाम टीम की, उनकी तमाम कलीसिया की मैं दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ। और इसी के साथ सिस्टर शुमेला के लिए जिन्होंने आज की इस मीटिंग का अरेंज किया, हम उनके खानदान के लिए भी बरकत चाहते हैं और हम दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी कलीसिया के अंदर आकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें, रूहों को बेदार कर सकें और खुदा के कलाम के बीज को आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। आए हम अपने कलाम की तरफ बढ़ेंगे जो आज की मरकजी आयत सिस्टर ने सेलेक्ट की, फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत। कोई भी जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई कर दे। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, मैं कहता हूँ खुश रहो। आमीन। आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल एक बड़ा भेद फिलिप्पी की कलीसिया के नाम लिखते हैं और वो कहते हैं खुश रहो, फिर कहता हूँ खुदावंद में खुश रहो। खुश लफ्ज जो है ये कानों में पड़ते ही बॉडी के अंदर कुछ हलचल मचा देता है, क्योंकि जब कोई खुशी के लम्हात होते हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पौलुस रसूल ने फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम इस खत को लिखा तो उसने कहा खुश रहो, फिर कहता हूं किसमें? अपने आप जी नहीं। हाँ, कई लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीजों को अपने माइंड के अंदर डेकोरेट कर लेते हैं। वो कहते हैं ये स्टेप मेरी लाइफ का आएगा तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? खुशहाल हो जाएगी। अगर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? खुशहाल हो जाएगी। और जिनके पास गाड़ी नहीं होती वो लोग डिजाइन करते हैं कि अगर मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? खुशहाल हो जाएगी। कुछ लोगों की डिजाइन होती है कि मुझे रुपया पैसा मिल जाए तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? खुशहाल हो जाएगी। मगर बाइबल यहाँ पर कहती है दुनिया की चीजें बिक जाएंगी। यहाँ पर वो जो बड़ा भेद दे रहा है वो कह रहा है खुदावंद में खुश रहो। हालेलुया। किस में खुश रहो? वो कहते हैं खुदावंद में खुश रहो, क्योंकि खुदावंद के बगैर हम कोई खुशी हासिल नहीं कर सकते। दाऊद कितनी प्यारी बात कहता है, वो कहता है मैं खुश होया जदों मनु किथे चलिए रिश्तेदार पारच महंगे होटल नो। वो कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ रब्बुल आलमीन के घर में चले, आओ उस कुदूस के घर में चले, आओ उसके कदमों में बैठे जहां पर सारी दुनिया की दौलतें, जहां पर सारी दुनिया के हीरे जवाहरात, जहां पर सोना चांदी महंगे से महंगा डायमंड भी फेल हो जाता है, वहां पर यीशु की हजूरी हमें नया कर देती है। खुश होना जदों मनु कि आओ यहोवा दे भाई, उसको खुशी और शांतमानी उसकी रूह अंदर से खुश हो जाती है जब उसको कोई कहता है कि आओ हम यहोवा के घर चले। खुदावंद के बगैर हमारी कोई खुशी कंप्लीट नहीं है। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर यीशु नहीं है तो हम जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की निजात का भेद नहीं है तो हम कभी भी हकीकी खुशी और शादमानी से नहीं भर सकते। चाहे दुनिया की सारी दौलतों के हम पूरे तौर पर उनको अपने कब्जे में ले लें, हम चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, हम चाहे जितने भी स्टेटस वाले हो जाएं, हम चाहे जितने भी बादशाह हो जाएं, हम मालदार हो जाएं, मगर हकीकी खुशी और शादमानी का भेद सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जात के अंदर है। वो कहता है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत? खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी है? भाई उसकी सारी खुशियां उसके खुदा के साथ जुड़ी हुई है। आज खुशी का लम्हा सुनना और खुशी को सेलिब्रेट करना, उसको एंजॉय करना बड़ा मुश्किल होता है। महंगाई बहुत हो गई है,
महंगाई से डबल भी हो जाए तो मैं कहती यहोवा यरीते टोंटे, महंगाई से ऊपर भी हो जाए, हम किसी मुश्किल का शिकार हो जाए, हम मुसीबतों का शिकार हो जाए, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर भी हो, अगर हमारी जिंदगी के अंदर यीशु है तो हमारे अंदर वाकई हकीकी खुशी और शांतवानी बसी हुई है। हालेलुया। जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि पौलुस रसूल ने जब इस खत को लिखा तो वो किसी महल के अंदर नहीं था। आप हिस्ट्री में देख लीजिएगा, कामूसल किताब के अंदर इसको देख सकते हैं आप। जब उसने इस खत को लिखा तो पौलुस रसूल जो है वो उस वक्त रोम की पहली कलीसिया ये उन्होंने बनाई जो मर्दीनिया के इलाका के अंदर फिलिपी के अंदर थी। और जब ये रसूल खत लिख रहा था उस वक्त वो बड़ी आजमाइश के अंदर था, वो बड़ी मुश्किल के अंदर था, वो बड़े दर्दों के अंदर था, वो बड़े कर्ब के अंदर था, मगर वो इस जगह पर खुश था क्योंकि यीशु मसीह उसकी जिंदगी के अंदर था। हालेलुया। यीशु मसीह की एक मुलाकात ने साउल को पौलुस बना दिया। और जब वो ये खत लिख रहा था उस वक्त वो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर था। वो अपनी प्रॉब्लम को बताता है। अगर हम इसको देखें तो रसूल जो है कलीसिया को बनाते वक्त जब ये लिख रहा था तो वो मुश्किल के अंदर था, वो बहुत सारी परेशानियों के अंदर था, वो मसीही भाइयों और मसीही खादमों की मुखालफत को सह रहा था उस वक्त। आज हमारी हल्की सी मुखालफत हो तो हम बैठ जाते हैं, ऐसा होता है। जो लोग खिदमत गुजार रहे हैं लोग जरा सुनिएगा, थोड़ी सी मुश्किल आए हम खिदमत रोक देते हैं, हम कहते नहीं थोड़ा सा वेट कर लेने हैं। भाई जो वक्त खुदा का ठहराया हुआ है, मुश्किल आई है, पहाड़ आया है, बैरियर्स आए हैं, खुदा के साथ लिपटे रहे, उसमें खुश रहे, वो आपको उन पहाड़ों को मैदान करने के लिए घूमत और जोर दे देगा। आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल के बारे में देखेंगे जरा, जब वो खत लिख रहा था, दूसरा ग्रंथियों उसका 11वां बाब, जल्दी से निकालिएगा। यहाँ पर देखिएगा जब वो कलीसियाओं को बना रहा था तो वो किन किन मुश्किलात में से गुजर रहा था। जी, दूसरा ग्रंथियों 10 बाब से पढ़ लेते हैं और उसकी 16वीं आयत में जरा उसकी हालत और कंडीशंस को देखिएगा कि वो कैसा ईमानदार था, वो कैसा मसीह में खुश रहता था। खुश रहने का भेद ये नहीं है कि हम प्रोग्राम्स अरेंज कर ले, हम अच्छे कपड़े पहन ले, हम अच्छा खाना खा ले। नो नो, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं यीशु मसीह की फेलोशिप की, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कुर्बत की, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि खुदावंद में खुश रहो, क्योंकि जब तक तुम खुदावंद में हो दुनिया का कोई भी गम तुम्हें मायूस नहीं कर सकता, क्योंकि हकीकी तसल्ली और शांतवानी की सूरत में खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर होगा। यहाँ पर जब वो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं तो वो बहुत सारे दुखों में से गुजर रहा है। उसके दुख जरा सुनिएगा, यहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है 11वें बाब की, मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फख्र करूं। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावंद के तौर पर नहीं बल्कि गोया बेवकूफी से और उस जुनून से कहता हूँ जो फख्र करने में होती है। यहाँ और बतेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं, मैं भी करूँगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई गुलाम तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या पछला देता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि मैं कमजोर था, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफी है, मैं भी दलेर हूँ। क्या वही इब्रानी है? मैं भी इब्रानी हूँ। क्या वही इस्राएली है? मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से है? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खातम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर। आप देखें ज्यादातर वो किस में है? यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स इस बात का दावा करेगा कि मैं मसीह का बंदा हूँ, मैं मसीह की बंदी हूँ, मगर थोड़ा सा गम आए तो हम क्या कर देते हैं? साइड मार जाते हैं। यहाँ पर उसने अपनी कंडीशन को बताया है और आगे मैं उसके जो मुश्किलात थी उसके बारे में आपको बताऊंगी।
यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई मसीह होने का दावा करता है कि मैं मसीह में खुश हूँ, मैं मसीह का बेटा हूँ, मैं मसीह की बेटी हूँ, मैं ज्यादा नॉलेज रखता हूँ, मैंने ज्यादा डिग्रियां ली हैं, और अगर वो ये दावा करते हैं तो वो कहते हैं मैं उनसे ज्यादा हूँ, क्योंकि उसके अंदर खुदा की खुशी और शादमानी है। हालेलुया। आप देखिए जरा वो किन हालतों के अंदर है, मगर उसको सारी कलीसियाओं की फिक्र दबा रही है। यहाँ पर कहता है मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैन लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, अपने भाइयों के खतरों में, गैर अक़वाम के खतरों में, मेहनत में और मुशक्कत में, वो यहाँ पर कहते हैं गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगपन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आग दबाती है। किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खिलाने से मेरा दिल नहीं दुखता, क्योंकि मैं हर वक्त खुदावंद में खुश रहता हूँ। हालेलुया। वो कहते हैं इतनी मुश्किलों के अंदर भी मैं भाइयों के खतरों में रहा हूँ, मैं गैर अक़वाम के खतरों में रहा हूँ, मैं समुद्रों के खतरों में रहा हूँ, मैं जिल्लत और रुसवाई के खतरों में रहा हूँ, कई बार जहाज टूटने के खतरों में पड़ा हूँ, 3 बार उल्टी सलीब पर लटका दिया गया हूँ, मगर मेरी ज़ात के अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरे महबूब की ऐसी मोहब्बत है कि वो मुझे हर वक्त उसमें खुश रहने का कहती है, चाहे मैं कैसी भी अज़ियत में हूँ। आमीन। तो हम मसीह में कब तक होते हैं, हम खुदा में कब तक होते हैं? सिर्फ गिरजे में बैठे हुई कंडीशन में। जब तक हम चर्च के अंदर हैं तो हम क्या हैं? हम मसीही हैं, हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं। जैसे ही चर्च से कदम बाहर तो हम क्या हैं? हम कुछ और ही दिखाई देते हैं। मगर यहाँ पर वो कह रहे हैं, वो कह रहे खुदावंद में क्या रहो। अगर कोई खुदावंद में है तो वो कैसी भी कंडीशन में, वो कैसी भी मुश्किल में है, वो हर वक्त खुशी का दावा करेगा। हालेलुया। बाज़ दफा हम लोग घरों के अंदर इतनी प्रॉब्लम में से आते हैं, इतने दुखों में से आ जाते हैं, कई ते घरों लड़के भी आए होंगे तो वहां ने बत्ती डाल दी, अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि हम बड़े क्या हैं, हम खुश हैं, हमारा घराना खुशहाल है। ते घर में जो लड़ाई मुकती कोई नहीं, छोटी छोटी बात से लड़ाई, छोटी छोटी बात से। हम अक्सर घरों के अंदर छोटी छोटी बात को इग्नोर नहीं करते। हम क्या करते हैं? छोटी सी बात तो एक बड़ा पुआड़ा पड़ गया। मगर यहाँ वो कह रहे हैं खुदावंद में क्या रहो, खुश रहो। अगर खुदावंद में हो तो वो आपको हकीकी खुशी और शादमानी से भरेगा। अगर आप खुदावंद में हो तो वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स के अंदर है, समुद्र के खतरों में है, जहाजों के खतरों में है, मौत के खतरों में है, बैंड लग रहे हैं, दर्द दिया जा रहा है, कर्ज की हालत में है, मगर उसी हालत और कंडीशन के अंदर कलीसिया को मजबूत कर रहा है। वो कहता है मैं किसी के कमजोर करने से कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खिलाने से मेरा दिल नहीं टूटता। और होता क्या, हम कलीसिया के अंदर ही होते हैं, अंदर टूटे भजे होंगे। हाँ, स्टेज पर आकर हम बड़े बड़े नारे मारेंगे, यीशु जिंदा है, यीशु ये कर देगा, यीशु वो कर देगा, मगर अंदरों अफसुर्दगी थी हम। भाई वो आज के दिन ये पैगाम दे रहा है,
खुदावंद में खुश रहो, क्योंकि खुदावंद के बगैर कोई खुशी नहीं है। अगर आज मैं इस जगह पर हूँ तो ये मेरे यीशु की बदौलत है। उसने मेरी खातिर अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, उसने मेरी खातिर अपनी दाढ़ी को नचवाया है, उसने मेरे और आंख की खातिर अपनी कमर पर 1 कम 40 कोड़े खाए हैं, उसने मेरी और आंख की बहाली के लिए अपने बदन को बलिदान किया है, उसने अपने बदन को लहू लुहान किया है, उसने मेरे और आपके सारे गमों को अपने ऊपर ले लिया है, उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने बदन पर लिया है, उसने मेरे और आपके गमों को, मुसीबतों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर उनका भरमारा तमाशा बनाया है, और वो मर गया है, वो दफन हुआ है, और तीसरे दिन जी उठा है, और वो कहता है मैं मर गया था, मैं जी उठा, और अब तो बाद जीता रहूंगा। भाई यीशु मसीह ने सारे दर्द ले लिए सलीब के ऊपर, मेरे और आपके लिए एक अजीम कुर्बानी देकर, एक अजीम कफारा देकर, अपने ही बदन को बलिदान करके उसने हमारे गमों को ले लिया है, क्योंकि वो हमारे गमों का मदावा बन के आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है खुदावंद में खुश रहो। फिर बाज़ दफा हम किसी को मुसीबत में देखकर, जेड़ा कोई साडा दुश्मन है, अगर हमारा कोई दुश्मन हो, हमारी ना बनती हो, ਉਹਦੇ कोई मुश्किल आ जाए, ऐसी खुश हो जाने, वेखे इन्हें मेरे नाल ऐ कीता सी, दे देना ऐ होए। हम दूसरों के गम और मुसीबत को देख के कभी कभी हम अंदर से सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं। ये भी गलत बात है, क्योंकि कलाम में लिखा अपने सताने वालों के लिए क्या करो। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, मगर खुदा का रूह बोल रहा है कि अपने दुश्मन को मुसीबत में देखकर खुशी ना करें, बल्कि उसके लिए दुआ में ठहरें, उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद उसको मुश्किल में से निकाले। जब आप मुश्किल में उसके लिए दुआ करेंगे, कल को कोई आपके लिए हाथ खड़ेगा। कलाम कहता है आदमी को कुछ होता है वो ही काटेगा। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो मुश्किल में है, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, मगर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी पर्सनल प्रेयर के अंदर जाकर उसके लिए हकीकी खुशी और शादमानी को मांग ले कि हे खुदा, मैं उसको दिल से माफ करता हूँ, दिल से माफ करती हूँ, मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को तू बहाल कर दे, और इसके अंदर से उस सारे गम को दूर कर दे, ताकि तू इसकी जिंदगी में बेहतर तौर पर काम कर सके। खुश रहो खुदावंद में। ते कई अपने आप जी रहते ने, बार बार कह रही हूँ, अपने आप जी खुश नहीं रहना, जान से नहीं दे रहे अपने आप को कि दिल बड़ा परेशान है, उठो फलाने का हो जाइए। भाई जब दिल परेशान हो तो आप यीशु के कदमों में आ जाइए, यकीन जाने इतनी सेटिस्फेक्शन देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हकीकी खुशी और शादमानी का सरचश्मा सिर्फ यीशु मसीह है। इंसान आपके दिल के गम को सुनेंगे, वो आपके घर की प्रॉब्लम्स को भी सुनेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा वो आप पर हंसेंगे। हम अक्सर अपना दिल खोल देते हैं इंसानों के सामने, और बाद में वही लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आपका गम आपसे दूर हो, तो आपको यीशु की जरूरत है, आपको उसकी गुर्बत में जाने की जरूरत है, आपको हकीकी खुशी और शादमानी लेने के लिए उसके कदमों में जाने की जरूरत है। आप उसकी हजूरी में चले जाएं, आप उसकी प्रेजेंस में चले जाएं, खुदा का रूह आप पर जुम्बश करेगा और वो आपके गम को खुशी में तब्दील कर देगा। आमीन। वो आपके गम को खुशी में तब्दील कर देगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता और मानता है, वो सब कुछ बनाने वाला है। और कलाम में लिखा है कि हाकिमों के दिल उसके हाथ के अंदर है और वो उनको पानी के रेलों की तरह फेर देता है। भली लो इंसान का दिल भी खुदा के सामने है। अगर आज आप दुखी दिल के साथ आए हैं, अगर आप आज मायूसी के साथ आए हैं, अगर आप डिप्रेशन का शिकार होकर आए हैं, आप किसी बीमारी के अंदर आए हैं, यीशु के सामने अपना दिल खोल दे, वो आपको सेव नहीं करने देगा, वो आपको बदल के रख देगा। मगर जरूरत है अंदर से
बनावटी खुशी नहीं कि हम ऐसे ही बनावटी तौर पर बता रहे हैं। शेपलेस चीजें जब हो नजर आ जाती हैं। जो चीज शेप में हो उसका नाम होता है। तो अगर हम यीशु में होंगे तो हमारी एक पहचान होगी। अगर हम यीशु में हैं तो हकीकी खुशी और शादमानी हमारी जिंदगी का हिस्सा होगी। मैं अभी यहाँ पर कुछ नौजवानों के लिए जाऊंगी। वाइस की किताब में जल्दी से जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, उनके लिए खास पैगाम है। वाइस क्या कहता है, जरा निकालिएगा। 11वें बाब की 9 आयत कोई भी पढ़ दे जल्दी से। जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आमीन। यहाँ पर देखें, वॉइस जो सुलेमान की किताब है, उसने अपनी जिंदगी का तजर्बा लिखा इसमें। वो कहता है, ऐ जवान तू अपनी जिंदगी में क्या हो, तू अपने आप से खुश हो। हाँ, वो कहता है तू खुश हो, तुझे जो अच्छा लगता है तेरी आंखों को तू कर। वो कहता है जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना क्या बहला, जी बहला, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदावन तुझको कहां लाएगा। हम जमीन पर रहते हुए जो अपने लिए खुशी के टूल्स ढूंढ रहे होते हैं ना, अक्सर कईयों की खुशी मोबाइल को ज्यादा यूज करने में, कईयों की खुशी नशे करने में है, कईयों की खुशी महफिलों में जाने में है, कईयों की खुशी जो है वो सिगरेट पीने में है, कईयों की खुशी नेटवर्क का गलत इस्तेमाल करने में है, वो फेसबुक यूज करेंगे। वो कहते हैं जवान अपनी जवानी में, मगर याद रख के खुदा की करेगा। अदालत किन लोगों की होती है? हाँ? जो मुजरिम होते हैं, जिन्होंने कोई गुनाह किया होता है, जिन्होंने कोई चोरी की होती है। वो यहाँ पर कहता है जवान अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के खुदावन तुझको खुदावन अदालत में लाएगा। आप यहाँ पर आर्टिफिशियल अगर खुश हैं, आप कहते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिंदगी से, मगर अंदर यीशु नहीं है, जिंदगी में खुदा नहीं है, जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, तो वो कहते हैं तू याद रख मैं तुझे अदालत में लाऊंगा। और फिर कहते हैं बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों क्या है भाई, ये बादल है, खत्म होने वाली चीज है। आप चंद मिनट अपने जमीनी ख्वाहिशात को पूरा करके आप खुशी और शादमानी को देख सकते हैं, मगर हकीकी खुशी और शादमानी सिर्फ यीशु में है, क्योंकि दुनिया की चीजें मिट जाएंगी। खुदा ने हर एक इंसान की जिंदगी की हदों को मुकर्रर किया है, और जब आप उस हद को क्रॉस करके आप जाएंगे तो आप सोचे जरा किस जगह पर जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं अदालत का एक दिन मुकर्रर है। और अगर यीशु में ना हुए और यीशु आप में ना हुआ, उसका कलाम आप में ना हुआ, उसके रूह के फल आप में ना हुए, और जो कुछ आप जमीन पर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ आरसी तौर पर इस चर्च का हिस्सा है, अपनी कलीसिया का हिस्सा है, आप पुरपट का हिस्सा है, और अंदर जिंदगी के यीशु को नहीं रखा हुआ, तो फिर आसमान की बादशाहत के दरवाजे बंद है आपके लिए। क्योंकि जब खुदा ने अदालत करनी है तो उसने बड़े इंसाफ से करनी है। उसने ये देखना है कि आप उसमें कितना मगन बैठे। वो कहता है मेरे नाम से बदरूहें भी निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे ठीक हो जाएंगे, मगर मैं उस वक्त तुमसे साफ साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाकफियत। बड़ी खतरनाक हालत है। अगर यीशु में हकीकी खुशी ना ढूंढी तो जमीन पर रहते हुए जिंदगी की हद तक जब पहुंच गए, उसके बाद जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया है
उससे आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकेंगे। आज का दिन है निजात का दिन। अगर आपकी जिंदगी के अंदर यीशु नहीं है, आप खुदा में नहीं है, तो अपने दिल पर हाथ रख के कहें, खुदा मैं तेरे साथ वफादारी में चलूंगा। और अगर खुदा ने आपको खिदमत दी है, मुश्किलात में है, तो खुदा से जोर मांगे। खुदा उन मुश्किलों के अंदर भी आपको जोर और कुव्वत देगा और आप हकीकी खुशी और शादमानी से भरते चले जाएंगे और वो आपकी जिंदगी में होकर काम करेगा। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। मैं चाहूंगी जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं, आप किसी भी बीमारी के साथ आए हैं, आप आगे आ सकते हैं, आपके लिए हम दुआ करेंगे। चंद मिनट दुआ में जाएंगे। मैं चाहूंगी जितने खादम चर्च के अंदर मौजूद हैं वो आ जाए स्टेज पर। हालेलुया, तारीफ हो बनेगी। वो इससे अगर मौजूद है, आए अपना दिल उसके सामने खोल दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु की तारीफ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हजूरी, दे अपना
तेरा